For the class 8, last time rational numbers we have discussed, and I think one video was left in that chapter, rational number chapter, and that is the question based on the how to find the rational numbers in between the two rational numbers. We know that infinite rational numbers we can find in between the two rational numbers, but here we need to find the only four rational numbers in between -1 and -half. A very simple process we will go for it. Like suppose the because like the infinite rational number, so we want the 4 one. So let the first rational number be q1. So how to find half in bracket -1 and add it with -half, right? One already the small bracket is used, so you may write the curly bracket, correct? So here will be half of -1 -half, because plus minus become minus. Take the LCM. There will be -2 -1 and it is -3/4. This is the one rational number I got. Then after you want the Q2, suppose the second rational number. So again the same process, half. Now you can take this -1 and this one, or you can take this one and this one. It's up to you. So it's not exactly like what I am getting, the same you may have, or same in the book, or somewhere in that. So answer may be matched or not, it doesn't matter for it. But think of it, always the rational number in between that two only. That is the correct answer. So -1 and I will take -3/4. So -1 and -3/4. This one and this one. So there is 1/2 in bracket -1 and then this become -3/4, and then here will be the LCM 1 and 4 will be 4. There is -4 -3, हाँ, और ये हो गया आपका -7/8, correct? Q2. Now I want the Q3 suppose. So I will take what? So see, I am writing in the one number I am having -3/4, first one, right? In between them I got here -1 comma -7/8, right? And now I want from in between these two, or you can get in between these two, or you can get in between that two. I have got it. So in between these two you can get, so anywhere but in between them, -1 and -half, in between them any one you can choose. So I am taking these two. So 1/2, then after there will be -3/4, and here is -half. So there will be -3/4 and -half, correct? Then LCM, -4 is the 4 is the LCM, so -12 -2. This will be -14/8, correct? Or you can simplify also if you want, or if you don't want, just leave it as it is. But better what to simplify. 2 7 jar, 2 4 jar, okay? So there will be 4 1 jar 4. But one thing that there is a one mistake can be done. Like if you will go for -7/4 and then you divide this 4 to 7, 4 1 jar 4, 3.047, that 28. This is -1.7, and I think -1.7 will go beyond this number. So what is the mistake over here? Check. Is it or not? There is some mistake, and I need to find out. So half of -3/4 plus of -1/2, and -3/4 if I am getting, so it will be -1.7. We will write 4 2 8. What LCM? Oh shit! Please look at this one. There is -3 and 2, and this is what? -5/8. Now I think it is correct. So see, how did I check? I got this minus that is what, 7/4.
and I thought like minus 1 is there, and if I will divide it, so it become minus 1 point something, and minus 1 point something is what? Beyond this number. So be careful when you are getting the numbers. You must take care that the number is in coming in between that two or not, and that can be the big mistake if I am not taking care of it. By mistake I have done over here, like 4 is the LCM, so I am written here 12, but it will be 4 1 4 and 1 3 3 and 6. So that is not correct. So one more number I got here, minus 5 by 8, and that is called as 3, Q3. We have got Q3 now, and in between there, so I may write here minus 5 by 8, right? One more you want, so one more I can get. Suppose Q4 I want, so Q4 will be half of which two you would like to take? Then I take these two, no problem. So minus 1 and minus of 7 by 8, correct? So here will be 8 is the LCM, minus 8 and minus 7. This will be minus 15 upon 8, and that is what? Minus 15 upon 16, है ना? माइनस 1 से तो वो बड़ा है, माइनस 1 से बड़ा राइट हैंड, एंड माइनस 1.2 1.2 मीन्स माइनस 0.5 उससे छोटा, इधर और इधर, ये हमारा नंबर इन दोनों के बीच में आ गया. So we have all these 4 rational numbers, correct? You can have 4 different rational numbers in between them. It's up to you only which 2 rational numbers you are choosing in between, and that is up to you. There is not any hard and fast rule that you have to follow me only. You can take this one and this one. You can take this one and this one. You can take this one and this one. So this way, continue manner, you have infinite rational numbers. So it is supposed to find 4 only. So I have got 4 only. Okay. Now then after we can have the one more question. ये क्वेश्चन देखिए, this is a good question I think, and many times the students are confused how to find the rational numbers between the two given rational numbers, but the 6, 60, 600, 6000, 10,000, because we know that in between the two rational numbers there are infinite rational numbers, तो हम लोग बहुत से rational नंबर निकाल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट किया गया है, 6, 60 एंड 600. बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ और फटाफट आंसर आएगा. जैसे ये हुआ माइनस 5 बाई 8 एंड 3 बाई 8. अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लकी हो, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम बना लो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से. बहुत से तरीके हैं ना. तो चलो यहाँ पे तो सेम है, तो अब मुझे इसके बीच में पहला पार्ट करते हैं 6 चाहिए. तो आप देखो ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को देखो, और न्यूमरेटर को जरा नंबर लाइन पे सोचो कि यहाँ पे -5 है और यहाँ पे 3 है ना. अब -5 आपको लेना नहीं है बिकॉज बिटवीन बोले ना, ये नंबर बिटवीन, सो आई कांट टेक -5 और आई कांट टेक 3 बिटवीन, मतलब इनके बीच में. तो -5 और 3 के बीच में बहुत से नंबर्स आ रहे हैं, जिसमें हमारे ये 6 नंबर्स तो कम से कम एडजस्ट हो ही जाते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा. थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. अब इसके बीच में इनके बीच में भी रैशनल नंबर है, नो डाउट, बट थोड़ा इजी हो गया ना कैलकुलेट करना. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला नंबर उठा ले रहा हूँ, ये 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 उठा 1 2 3 4 5 6. हमें तो 6 ही चाहिए थे, तो मैं बस यहाँ तक जाऊँगा, है ना. मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप ये इंटीजर्स उठा रहे हो तो थोड़ा इजी लगता है. अब इसके बीच में भी आपको निकालना है तो भी निकाल सकते हो. तुम कह सकते हो भाई -4.5 भी हम उठाएंगे, तो उठा लो ना, कौन बोलता है, कौन मना करता है. नहीं, मैं थोड़ा इजी करके अच्छे नंबर उठाता हूँ. तो इनके बीच में हमारे पास जो नंबर होंगे 6 रैशनल नंबर्स आर, -5 के बाद क्या है, -4 बाई 8 तो चलता ही है, -3 बाई 8, -2 बाई 8, -1 बाई 8, 0 बाई 8. 0 बाई 8 मीन्स 0 और 1 बाई
8, 1 2 3 4 5 6, we have 6 rational numbers. पहला पार्ट ओवर. ओके, नाउ कम टू द 60. अब देखो यहाँ पे आराम से 60 नहीं उठा पाओगे. व्हाई? देखो -5 से आगे बढ़े -4 आया और -4 से लेके 2 तक जाओ तो ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो फिर इसके बीच में जाना पड़ेगा अंदर और फिर डेसिमल नंबर उठाओ. थोड़ा टफ लगता है डेसिमल नंबर उठाने. तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें नंबर. मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर सेकंड पार्ट मैंने जब देख लिया कि इसके बीच में मेरी बात नहीं बन रही है 60 वाली, तो मैंने क्या किया, इसमें -5 × 10 किया, 8 × 10 किया. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दैट इज व्हाट -50/80. ये हो गया. अब मैंने इसको क्या किया, 3/8 को भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 30/80. देखो वैल्यू ऑफ द नंबर तो सेम है ना, बट इक्विवेलेंट मतलब क्या, थोड़ा सा मुझे गैप मिल गया बीच में, अब बड़ा लग रहा है दिखने में. तो अगर मैंने ऐसे बनाया इसको, तो यहाँ है -50 और इस तरफ कहीं जाके है 30. तो सोचो ना कि -50 के बाद क्या आएगा, आप बताओ. -49, -48, -47, -46, ऐसे ऐसे करते करते जाएगा 0. फिर उसके बाद 0 के बाद ऑल पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 4 आराम से उठा ले रहे हैं, आराम से उठा ले रहे हैं. तो मुझे कितना चाहिए, 60 चाहिए. तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से, -49 से, फिर -48, है ना, ये सारे नंबर्स आए. तो अगर मैंने यहाँ से उठाया -49 पहला नंबर, तो नीचे तो 80 रहेगा, कॉमा -48, 80 हुआ. अब आप बताओ, ध्यान से थोड़ा सोचना कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ और फिर क्या किया, 0/80 किया, राइट ना, 0 तो आया होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे 0 आया होगा. तो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हुए, तो उसके लिए थोड़ा सा एक और काम किया करो कि यहाँ पे आने के बाद -1/80 लिख लो और इससे पूरा तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा. क्या ये देखो, -49, -48, -1, आप यहाँ तक गए, तो -1 से लेके -49 तक कितने नंबर आपने लिखा, 49 नंबर्स लिखे. और 49 नंबर्स यहाँ तक आ गए, फिर एक और नंबर 0 से लिखा, तो अब हो गए कि आपके 50 नंबर्स. और 50 नंबर के बाद हमें क्या चाहिए थे, 60 नंबर्स चाहिए. तो 50 के बाद यहाँ 1 से स्टार्ट किए, है ना, 2 हुआ, और कहाँ तक आप जाओ, कितने नंबर बच गए. देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हुए, 50. 10 और चाहिए ना, तो 1 से लेके कहाँ तक गया, 10/50. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो काउंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग मत गलत कीजिएगा. तो -49 से -1 तक ये साफ साफ दिखता है कि 49 नंबर्स मैंने लिख लिए, एक 0 भी ले लिया क्योंकि उसके आगे लिखता है, तो 50 हो गए, और 60 चाहिए थे, तो 1 से लेके 10 तक और लिख लिया. तो दिस इज माय आंसर फॉर द 60 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दीज टू. अब थर्ड पार्ट को देखते हैं. थर्ड पार्ट में हमें चाहिए 600 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/8 एंड 3/8. तो उसको भी फिर से वही देखते हैं. अब देखो यहाँ पे अगर हमने -5 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, यहीं कहीं 0 आएगा, तो हमने भी दिखाया था आपको कि इसमें अगर हम इंटीजर्स खाली उठा लें, डेसिमल्स को छोड़ दें, इंटीजर्स उठा लें, तो मेरे पास 6-7 इंटीजर्स बस आ रहे थे बीच में, और मुझे लिखते हैं 600. तो मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हेल्प लूँगा, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हेल्प लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि -5/8 को इस बार मैं थोड़ा और गैप बढ़ाने के लिए -5 × 100 कर लेता हूँ और 8 × 100 कर लेता हूँ. तो ये क्या हो गया, -500/800. और 3/8 को लिख लिया 3 × 100/8 × 100 विल बी 300/800. देखो अब गैप बढ़ गया. अब देखो नंबर लाइन पे देखो, अगर ये -500 है ना, और यहाँ कहीं है 300, है ना, तो यहाँ कहीं 0 होगा और यहाँ पे कहीं -1 होगा. तो -500 को तो लेना नहीं है, तो -500 के ठीक बाद वाला जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिख के, यहाँ -500 है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -499, उससे बड़ा. तो -499 से लेके -1 तक अगर आप जाते हो तो कितने नंबर आपने लिख लिए, आप बताओ. 499 नंबर्स आपने यहाँ से लेते हुए यहाँ तक ये लिखे, है ना. अब उसमें एक 0 भी उठा लो तो कितने हो गए, 500. लिखने कितने थे, 600. अब 0 के बाद आपको पता है कि यहाँ 1 आएगा, तो 1 से लेके अब आप कितने नंबर तक जाओगे,
100 तक। गॉट माय पॉइंट? 100 तक आप जाओगे तब आपको पूरे 600 हो जाएंगे। फिर से देखिए, मैंने इस नंबर को पहले गैप बढ़ाया कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि पिछला वाला जो 10 से किया था वो काम नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर आपने 10 से किया होता तो यहाँ -50 होता और 10 से किया होता तो यहाँ 30 होता। तो -50 से 30 के बीच में हमें इंटीजर्स आराम से 600 इंटीजर्स नहीं मिल रहे, 60 के लिए तो काम चल गया था, तो उसको गैप को बढ़ाने के लिए मैंने 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये हो गया आपका -500 को लेना नहीं है क्योंकि बिटवीन में जा रहा है, तो जस्ट आफ्टर -500 आ गया -499। ये इंटीजर एक बढ़िया इंटीजर ले लिया। अब -499 -498 -497 करते 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 कहाँ तक गए, -1 तक। तो काउंटिंग बड़ी अच्छी है क्या, -1 इधर -2 इधर -3, कहाँ तक गए, -499। मतलब कितने नंबर आपने लिख लिए, 499 नंबर आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लिए, और इसके बाद एक और जीरो ले लिया, तो 499 नंबर्स यहाँ तक लिख लिए और एक जीरो और ले लिया, तो अब कितने नंबर लिख लिए, 500। अब 1 से लेकर के अब मैंने देखूंगा कि 600 मुझे चाहिए थे, 500 ऑलरेडी हमने लिखा है, तो 1 से 100 तक और लिख लिया, तो 500 प्लस 100 कितने हो गए, 600। तो वी आर हैविंग 600 रैशनल नंबर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो लिखेंगे 600 रैशनल नंबर्स आर ये अपॉन 800, ये अपॉन 800, और ऐसे ऐसे करते करते -1 अपॉन 800, फिर 0 अपॉन 800, फिर 1 अपॉन 800, फिर ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में हम कहाँ गए, 99 अपॉन 800, है ना, कॉमा 100 अपॉन 800। ये गए नंबर्स। अभी क्लियर हुआ कैसे लिखा जाता है 600। अब 6000 कहता है ना, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते और फिर वैसे गैप बना लेते और फिर पकड़ लेते नंबर्स को। तो दैट इज वेरी सिंपल, राइट। नेक्स्ट वीडियो आफ्टरवर्ड्स।